So we have this lovely session here again, as usual, a Monday session, which I hope all of you like and love and learn a lot from that, and me too. And we all are going to learn about something new today, which is attitude. ठीक है, एटीट्यूड का मतलब एटीट्यूड दिखाना वाला एटीट्यूड नहीं है ये, ठीक है। एटीट्यूड मतलब हाउ यू we'll see a lot of meanings of attitude. We'll see how to improve our attitude. We will see around more than 20 tips or guidelines to learn to develop our attitude. Okay? And attitude is everything. There is a famous quote. We will also learn and read a lot of quotes to remember by, and we will also see benefits of attitude, how people get ahead, how all successful people have one thing in common. They all had good attitude. Attitude is everything. Change your attitude and change your life. So you see a beautiful slide here, a person imagining himself or to be, let's say, a lion. And it's based on a famous book again. It's called Attitude is Everything by Jeff Keller. So, okay. So how about taking a little chat here and understanding what you mean by attitude? तो देखो, हम सुनते तो आए हैं कि तुम्हारा एटीट्यूड बदलो, हम बच्चों को बोलते हैं है ना। हम सुनते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड इज एवरीथिंग। हम सुनते हैं कि एटीट्यूड नॉट योर एप्टीट्यूड डिटरमिन्स योर अल्टीट्यूड। ये सुना भी होगा कुछ लोगों ने, ये बहुत फेमस प्रोवर्ब है, कॉलेजेस में बताई जाती है कि तुम्हारे एप्टीट्यूड से कुछ नहीं होता, एटीट्यूड से सब कुछ होता है। उसी से अल्टीट्यूड यानी हाइट लाइफ में जहां पहुंचते हो वो डिसाइड होता है। तो व्हाट डू यू थिंक, हाउ डू यू थिंक, बिफोर वी गेट इनटू दिस टॉपिक, लेट्स हियर फ्रॉम अ कपल ऑफ पीपल, लाइक जो भी है, अगेन एज यूजुअल, नो रॉन्ग आंसर, नो राइट आंसर। जो भी आपको लगता है, वन वर्ड, टू वर्ड, वन लाइन, व्हाट एटीट्यूड मीन्स, एंड देन इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द टॉपिक अ लिटिल बेटर। तो थोड़ा सा हमारा वार्म अप हो जाएगा, हम ज्यादा स्पॉन्ज बन जाएंगे, सोक कर पाएंगे टॉपिक को। तो हमने सुना कि some people are saying how you respond to a situation, it depends on your attitude. That's your attitude. If you respond positively, let's say you have a positive attitude. If you respond negatively or you get angry at every other situation, your attitude is, let's say, negative or based on anger. How you think and respond, or let's say how you think and feel about the situations. What is the thinking going on? Is it positive thinking? That depends on positive attitude. Okay. Okay, so no answer is a wrong answer here. Let's understand what attitude is. With this quote on the screen in front of you, you will get a little hint. A positive attitude is a person's passport to a better tomorrow. So basically nothing new in this. We all kind of know this because we all heard of what attitude is and how it determines our success in life. It's very important to become successful. You see another definition on this beautiful slide. Your attitude is your window to the world. ठीक है। तो द सिंपलेस्ट वे टू डिफाइन एटीट्यूड इज, इट्स लाइक अ लेंस यू आर वेयरिंग, इट्स लाइक अ स्पेक्टिकल्स, लाइक शेड्स। हम जैसे चश्मा पहनते हैं, राइट? तुम्हारे चश्मा इज एटीट्यूड। आपके चश्मे पे अगर काला लगा है, डर्ट लगा है, देन यू कांट सी प्रॉपर्ली। अ लॉट ऑफ अस, सम ऑफ अस वेयर स्पेक्स हियर, राइट? दैट इज अ ग्रेट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड एटीट्यूड। आप किस लेंस से दुनिया को देख रहे हो, दैट इज योर एटीट्यूड। वन डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड। थिंक ऑफ योर एटीट्यूड एज द मेंटल फिल्टर through which you experience the world. So all of you are also correct. तो किस फिल्टर से होकर सिचुएशन दिखती है? देखो, निगेटिव एटीट्यूड का आदमी है तो उसके जीवन में अच्छी चीज होती है ना, तो भी उसको बुराई बुराई लगता है। ही विल फाइंड फॉल्ट्स विद एवरीथिंग बिकॉज ही इज अ फॉल्ट फाइंडर इन जनरल। ही इज अ नेगेटिव एनटीई, नेगेटिव थिंकिंग एक्सपर्ट, और ही इज अ एफएफ, फॉल्ट फाइंडर। तो ऐसे लोगों को ना अच्छी चीजें भी बुरी लगती है, अच्छी चीजों में भी फॉल्ट ढूंढते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं हमारे लाइफ में भी। So we call them improve your attitude, become a positive thinker. So it's like also a mental filter, and it's also like your mental lenses through which you see the world. उसी लेंस से अंदर जा रही है इंफॉर्मेशन, उसी लेंस से बाहर जा रही है ना। हमारे घर में एक डोर होता है, तो डोर कोई, देखो, पीछे का डोर भी होता है, आगे का डोर भी होता है, बट समझो आगे का डोर है, तो उसी से लोग बाहर जाते हैं। आपको घूमने जाना है तो आप उस डोर से गुजरते हैं। उस आपके घर में कोई आता है गेस्ट,
उसी डोर से वो गुजरता है, करेक्ट? इन सिमिलर वे एटीट्यूड इज योर डोरवे और लेट्स से विंडो, ग्लास विंडो टू योर ब्रेन और टू योर माइंड, और उसी विंडो में से इंफॉर्मेशन बाहर जाती है फिल्टर होके, उसी विंडो से इंफॉर्मेशन अंदर आती है फिल्टर होके। तो सामने वाला अगर बुरी बात कह रहा है और आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आपका एटीट्यूड फॉल्ट फाइंडिंग का नहीं है, सॉल्यूशन फाइंडिंग का है, then you will find good, you are a good finder, you are a solution finder, you are a happiness finder। तो आपको उसमें से भी अच्छी चीजें दिखेंगी। बट अगर आपका एटीट्यूड गलत है तो आप उसमें से भी स्टेक्स ढूंढेंगे। think so the best definition of attitude is it's like a mental filter, it's like a mental lens, it's like a mental glass window। ठीक है, एंड विल सी मोर एग्जांपल, सी द विंडो हियर। तो अब लिटरली देखो यहाँ पे एक स्लाइड पे एक विंडो दिया है। एवरीवन स्टार्ट्स विद अ क्लीन मेंटल विंडो। तो कोई छोटा बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, छोटे बच्चे होते हैं, तो हमें पता है उनका कोई लेकर नहीं आते वो अपने साथ गलत एटीट्यूड, है ना? एवरीवन स्टार्ट्स विद अ क्लीन मेंटल विंडो। एटीट्यूड इज नॉट योर जीन्स। तो कोई यहाँ पे किसी को लगेगा अरे इवन बेबीज हैव अ प्री डिफाइंड डेस्टिनी, और समवन मिल से अरे बेबीज के साथ भी जेनेटिक्स तो आ ही रहा है। यस यू आर राइट, जेनेटिक्स तो आ रहा है, बाप दादाओं का या फोर फादर्स का जेनेटिक्स तो आ रहा है उसके साथ, कलर एंड एवरीथिंग एंड अ लॉट ऑफ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो, और उसका डिवाइन कॉलिंग भी उसके साथ आ रहा है। लेकिन एटीट्यूड इज व्हाट वी डेवलप। एटीट्यूड इज, इट स्टार्ट्स, इट बिगिंस विद अ क्लीन लेंस। सो यू हैव अ क्लीन मेंटल विंडो। एक 6 महीने का बच्चा है, एक साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, गुड़िया है, वो जज नहीं करते किसी चीज को। उनके लिए अच्छा या बुरा नहीं है, आप उसको धक्का दे देते हो, उसको पहली बार पता चलता है कि अरे ये डांटना होता है, या आप प्यार करते हो तो उनको लगता है ये प्यार करना होता है। शी डजंट नो, ही डजंट नो, राइट? सो दे ऑल हैव अ क्लीन मेंटल विंडो एंड दैट्स क्लीन एटीट्यूड। बट इवेंचुअली व्हाट हैपेंस, यू नो, द विंडो गेट्स स्मीयर्ड, द विंडो गेट्स डर्टेड, द विंडो गेट्स ब्लैक। कैसे हो जाता है वो? तो ये देखो ब्लैक में वर्ड्स लिखे हैं, इन सब चीजों से हो जाता है। क्रिटिसिज्म इज वन थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिडिक्यूल, जब कोई मजाक उड़ाता है तो नेगेटिव सेल्फ इमेज डेवलप होता है। रिजेक्शन, disappointments, doubts and fear. Now just take a moment here, today it's very interesting session, it's very personal behavioral skill, और ये ऐसी स्किल है ना, देखो इसके सिवाय कुछ नहीं सीख सकते हो। you cannot do anything in life without the right attitude. If you want to become successful, it's a must. So why don't we all keep it a little interactive? Now don't say anything, just take a second with yourself, take a couple of seconds, और सब लोग आईज बंद करके या आईज खोल के भी ये सोचो कि when we started as kids or babies a few years back, some of us are more than 40, some of us are more than 20, whatever our ages, go back to when you were a kid and for a couple of seconds see your attitude was completely clean, and how many of these things affected you? Criticism, ridicule, rejection, disappointments, doubts and fear। इसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिससे हमारा भी एटीट्यूड डिस्टर्ब हुआ। ऐसा सिर्फ सोचो कि किसी ने कुछ मजाक उड़ाया, किसी ने डांटा, किसी ने रिजेक्ट किया हमारी ड्राइंग को, हमारे क्लास में टीचर ने ध्यान नहीं दिया, और वी वर डिसअपॉइंटेड बाय सीइंग injustice, or a feeling of doubts or fear. What happens? You have to wash your window. As simple as that. तो देखो इतना ही सिंपल है। अब किसी को लगेगा अरे इतना कैसे, इतना क्या इजी है, मतलब हाउ टू चेंज योर थॉट्स? यस यू कैन चेंज देम। देयर आर कोर थॉट्स, उसको भी चेंज कर सकते हैं। देयर आर वेज टू डू इट, ठीक है? बट द आइडिया इज इफ यू डोंट वॉश योर विंडो, you will continue to live in that rut, you will continue to live in the false ego, false image of yourself। हम सेल्फ इमेज पे और पब्लिक स्पीकिंग फियर पे, और देर आर मेनी अदर टॉपिक्स दैट वी विल टॉक अबाउट इन द फ्यूचर, बट लेट्स पे अटेंशन टू द टॉपिक वी हैव टुडे, ठीक है? इट्स योर जॉब टू कीप योर विंडो क्लीन। Unless you are with a master or with a mentor or with a really well wisher who can bring you out, it's very difficult to get yourself clean. So it's your own job to keep your window clean. Now why this exercise was necessary? Because in the coming slides we will see a lot of techniques to improve our attitude। तो अगर हम में से, ऐसा नहीं कि यही फियर है, कोई भी फियर है अगर आपके अंदर कि मैं बात नहीं कर सकता हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, या मैं साइंटिस्ट नहीं बन सकता हूँ, मैं क्रिएटिव थिंकर नहीं हूँ, मेरी कोडिंग अच्छी नहीं है, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है ना, जो भी है, जिस तरह के भी थॉट्स हैं, फियर्स है ना, एवरीथिंग कैन बी ब्रोकन एंड यू कैन डेफिनेटली इंप्रूव योर एटीट्यूड in life, in progress, in career, in everything। So let us see how we can do that। So some of these principles we will learn by some of the masters in the world। You are a human magnet।
Remember this. Now we are starting into the techniques to jump into the right attitude. We become what we think about. ये तो हमने सुना भी होगा. Buddha has also said, who we think is who we are. How you think, जैसे आप थॉट्स रखते हैं वैसे आप बन जाते हैं. अगर आप नेगेटिव थॉट्स रखते हैं तो नेगेटिव बन जाते हैं. वो कहानी सुनी है क्या किसी ने, बुल वाली? वो देयर इज अ ब्यूटीफुल सूफी और ज़ेन स्टोरी, आई कैन रिलेट टू इट इफ यू ऑल आर इंटरेस्टेड. एक एक आदमी है जो चरवाहा है. ही इज अ शीप हर्डर ऑन द माउंटेन्स एंड मास्टर सीज हिम. एक साधु को वो मिलता है. तो एक साधु को वो जाके पूछता है कि हाउ डू आई चेंज माई एटीट्यूड, हाउ डू आई चेंज माई, व्हाट इज द पावर ऑफ थॉट्स, ही आस्क्स. तो वो मास्टर उसको बोलते हैं कि ठीक है, लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट. व्हाई डोंट वी डू एन एक्सपेरिमेंट? तो सामने एक गुफा है. तुम शीप चराते हो, भैंसे चराते हो, गाय चराते हो. तो तुम्हें उन्हीं की भाषा में मैं एक टेक्निक देता हूँ. व्हाई डोंट यू ट्राई दैट? शायद सुनी भी होगी, कुछ लोगों ने कहानी सुनी होगी तो मुझे बताना बाद में, ठीक है? तो फिर देन ही टेल्स हिम, तब मास्टर उसको बोलते हैं कि आप गुफा में जाओ और मैं भैंस हूँ ऐसे कॉन्टेम्पलेशन करो. आइस बंद करके बैठ जाओ सुबह से लेके शाम तक, और एक ही विचार दिमाग में तुम्हारे घूमना चाहिए कि मैं भैंस हूँ. ठीक है. तो करता रहता है, वो करता रहता है, करता रहता है. एक दिन हो जाता है. फिर देन मास्टर गोज बैक टू हिम एवरी इवनिंग एंड आस्क्स बेसिकली हाउ इट इज गोइंग. चलो बाहर आ जाओ गुफा से. छोटा सा मुंह था उस गुफा का, विंडो टू जंप इनटू इनसाइड और टू जंप आउटसाइड. तो वो करता रहता है. एक दिन कहता है बाहर आ जाओ, तो वो बाहर आ जाता है. तो मास्टर कहते हैं ओके फाइन, गो बैक इनसाइड एंड कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज फॉर नेक्स्ट डे. फिर दूसरा दिन करता है. तीसरे दिन जब व्हेन द मास्टर गोज एंड आस्क्स हिम टू कम आउटसाइड, ही इज अनेबल टू कम आउटसाइड. तो वो पूछते हैं क्या हो गया. तो वो कहता है मेरे सींग जो है वो अटक रहे, अभी मैं बाहर नहीं आ सकता. मैं तो भैंस हूँ और मेरे सींग अटक गए अभी इस गुफा में, मैं बाहर नहीं आ पा रहा. तो फिर वो एक उसको झापड़ लगाते हैं तो वो बाहर आता है उसमें से. एंड देन ही मास्टर इन सम टेक्निक ही ब्रिंग्स हिम बैक टू द अर्थ. द आइडिया ऑफ दिस स्टोरी वाज, इट्स अ वेरी फेमस सूफी स्टोरी. द स्टोरी इज, द मीनिंग इज कि योर थॉट्स आर सो सो पावरफुल. तो अगर आप एक थॉट को स्टिक करते हैं आपके माइंड में, तो लिटरली वो जो सीन थे नहीं, जो जो उसको फील हो रहे थे, तो यू विल फील दैट, यू विल बिकम दैट इफ यू आर continuously focusing your thought on something. So don't take it very lightly. It's very, very powerful. Thoughts are very, very powerful. So you are a human magnet. We become what we think about. Okay? And there is another beautiful thing here is what the mind can conceive and believe, the mind can achieve. Napoleon Hill, he is the author of perhaps the most famous book on becoming rich, Think and Grow Rich. There is a very famous book, बहुत लोगों ने ये नाम सुना भी होगा, Think and Grow Rich. It's a 150-year-old book. It's still into bestseller. Very nice, and it gives you literally the principles to become rich. And it's based on thought power. And the author is Napoleon Hill. इस पे एक बड़ा मूवी भी बन रहा है अभी हॉलीवुड. ठीक है. TH something short form is there. THTR. Think and Grow Rich. THGR. What the mind can conceive and believe, the mind can achieve. Okay. Now, what is the law of dominant thought? यही जो हमने अभी कहानी सुनी. So that is the power of dominant thought. If you have one dominant thought in your mind, you can actually become that with a little, very little practice also. Repetition is the key. तो रिपीटेशन सिर्फ तोते वाला नहीं, रिपीटेशन विजुअलाइजेशन वाला. तो सिर्फ रोट रिपीटेशन की बात नहीं हो रही है. रिपीटेशन करने, रोट रिपीटेशन से भी फायदा होता है. रोट रिपीटेशन से भी हमने बड़े बड़े एसेज याद किए हैं, बहुत कुछ किया है. बट इफ यू ऐड द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन और इफ यू ऐड द पावर ऑफ फीलिंग टू इट, कि हाँ मैं फील कर रहा हूँ ऐसा. सपोज मैं आई एम स्ट्रांग, आप एक अफर्मेशन दोहराते हैं. कोई वीक पर्सन है, उसको अफर्मेशन दिया जाता है कि आई एम वेरी पावरफुल, आई एम स्ट्रांग. सिर्फ ये अफर्मेशन दिया जाता है. तो आप उसको सिर्फ रोट मेमोराइज तरीके से दोहराने से अच्छा है, यू कैन रिपीट इट बाय फीलिंग इट. तो आप जब फील करते हैं यस आई एम स्ट्रांग, मेरे अंदर से शक्ति का संचार हो रहा है, आप फील कर रहे हैं और दोहरा भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, देन इट हैज इवन मोर मैग्नेटिक पावर टू इट, मिरेकुलस पावर टू इट. ठीक है. तो उसमें विजुअलाइजेशन या आपने थॉट जितना भी आप उसमें सेंसेस को जोड़ते हैं, अपनी पूरी फीलिंग्स को उसमें डालते हैं, अपना पूरा होल एंड सोल उसमें डुबाते हैं ना, देन द टेक्निक बिकम्स एक्चुअली मिरेकुलस. तो जो काम 100 दिन में होना है वो 10 दिन में हो जाएगा. इतना पावरफुल हो जाता है वो. रिपीटेशन से भी हो जाएगा बट ज्यादा टाइम लगेगा. तो आप जितना हाफ हार्टेडली कर रहे हैं ना, वैसा हो रहा है. ल्यूकवार्म से भी रिजल्ट आएगा बट बहुत टाइम लगेगा. पोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड से जल्दी रिजल्ट आएगा. ठीक है. So what is recommended to improve your attitude is to keep yourself
positive. How you will keep yourself positive? You can read positive literature every day. Don't read rubbish newspapers. Don't read abusive news articles. Okay. Don't watch something that demeans people, or don't watch something that is negative to your brain. It's a food for your brain. And listen to motivational audios. Okay. Let's see some more ideas here and beautiful quotes. What we sincerely believe regarding ourselves is true for us. ये जैसे देखो लॉ ऑफ थॉट हमने अभी देखा कि आप जो सिंसियरली विश्वास करते हैं अपने बारे में कि मैं ये हूं, तो वो आप होते हैं, एक्चुअली वो आप बन जाते हैं। वो नहीं होते तो भी आपकी पावर्स उतने ही बाउंड्री पे काम करती है। इफ यू थिंक यू आर वीक, यू मे बी स्ट्रांग, एक्चुअली यू मे हैव अ हरक्यूलियन पावर हिडन इनसाइड यू। बट अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं, ये आपके अंदर ये कोर थॉट है कि मैं वीक हूं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, या मेरी ये बाउंड्री है काम करने की, तो आप उतनी ही बाउंड्री तक काम कर पाएंगे। आपकी सक्सेस गेट्स लिमिटेड विद दैट बाउंड्री। आप उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। क्यों? बिकॉज मेंटली यू हैव क्रिएटेड दैट प्रिजन फॉर योरसेल्फ, मेंटली यू हैव क्रिएटेड दैट बैरियर फॉर योरसेल्फ। उसको तोड़ नहीं पाएंगे आप। ठीक है। नाउ लेट्स सी दिस अनदर वे। पिक्चर योर वे टू सक्सेस। ठीक है। दिस इज अनदर टेक्निक टू इंप्रूव योर एटीट्यूड। विजुअलाइजेशन की हमने थोड़ी सी अभी बात की थी। सो दिस इज मोर इन लाइक मोर आइडिया टू विजुअलाइज मच बेटर। थोड़े कुछ और विजुअलाइजेशन के प्रिंसिपल्स हम देख रहे हैं। देखो हम सबके माइंड में ना मूवीज होते हैं। मूवीज जो मूवीज देखे हैं वो भी, और जो बचपन में हमारे साथ हुआ है अभी तक लाइफ में जो भी, वो मूवीज की तरह थॉट्स हमारे माइंड में चलते हैं, है ना। पिक्चर्स की तरह चलते हैं। आपको कुछ बुरा हुआ है, कुछ अच्छा हुआ है, कोई प्राइज मिला था, वो फटाफट आप एक चीज को सोचते हैं, कोई थॉट के बारे में सोचते हैं, या थॉट आ जाता है अचानक निकल के कॉन्शियस मेमोरी में, तो उसके साथ साथ ना एसोसिएशन की पावर से और बहुत सारी चेन ऑफ थॉट्स पर आती जाती है। हमें पता है, राइट। एक के बाद दो, दो के, इसी को डे ड्रीमिंग बोलते हैं। अब दो तीन चार पांच चले जाते हैं उसमें पूरे, फिर उसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। तो ये क्यों होता है? इट्स लाइक अ मूवी, लिटरली मूवी ऑफ योर लाइफ रनिंग इनसाइड योर माइंड। ठीक है। तो इसको ना पावर की तरह यूज किया जा सकता है एक्चुअली। ये कॉन्शियसली नहीं होता है, ये अनकॉन्शियसली माइंड में हमारे चलता रहता है। हम इसको कोई ना पावर देते हैं ना कुछ इसका यूज करते हैं। तो इसी को अगर आप शेप कर सकते हैं, देखो ब्रीदिंग भी चलती रहती है, थॉट्स भी चलती रहते हैं, लेकिन आप ब्रीदिंग को भी शेप कर सकते हैं तो प्राणायाम में बन जाता है वो। आप थॉट्स को शेप करते हैं तो power of thoughts come into play. Laws of thoughts, universal laws of thoughts start working for you in your favor. The most powerful laws of the universe start working in your favor if you shape your thoughts. So they are very very powerful. तो देखो अभी ये कोट पढ़ते हैं पहले यहाँ पे। यू मस्ट फर्स्ट क्लियरली सी अ थिंग इन योर माइंड बिफोर यू कैन डू इट। एलेक्स मॉरिसन। तो उन्होंने कहा है कि आपको कोई भी चीज करने से पहले आपको उसको माइंड में क्लियरली देखना पड़ता है। दो जगह पे क्रिएशन होता है, पहले माइंड में होता है और फिर फिजिकल प्लेन में होता है। कोई आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाता है तो पहले उसका प्लान बनाता है, ब्लूप्रिंट बनाता है, राइट। आप कुछ कोड लिखते हैं तो आप पहले उसका डिजाइन लिखते हैं, आप पहले नोट्स बनाते हैं, रिक्वायरमेंट्स लिखते हैं कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। यूएक्स बनाते हैं तो भी हम मॉक्स बनाते हैं, नहीं भी बनाते हैं तो दिमाग में बनाते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा होगा, फ्लो समझते हैं पहले। तो एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन योर थॉट्स, सेकंड इन योर फिजिकल डायमेंशन। ये बहुत सारे सेशंस में ये चीज कवर होगी। दीज आर यूनिवर्सल लॉस। ठीक है। तो कोई भी चीज जब पहले माइंड में क्रिएट होती है, वहीं अगर वो वीक तरीके से क्रिएट हो रही है ना, तो फिजिकल में भी उसका मैनिफेस्टेशन वीक होता है। इट इज बेस्ड ऑन अ वीकर फाउंडेशन। Let's see the next line. You and only you, perhaps this line is not clearly visible due to the slide overlap, but you and only you are in control of your mental movies. So like a director, like a good Hollywood director, you are the one running your movies inside your mind. Okay. When you don't consciously decide which pictures to play, the mind will look for archives and keep replaying. Very, very important. Point number 3 here. जब आप डिसाइड नहीं करते कि मुझे लिटरली कौन से एक्चुअली मूवीज प्ले करने हैं मेरे माइंड में, कौन से थॉट्स को मुझे तूल देना है, महत्व देना है, इंपॉर्टेंस देना है, देन दे कंटिन्यू टू प्ले ऑन देयर ओन। तो कुछ कभी पास्ट का कोई भी आर्काइव निकाल के योर माइंड विल स्टार्ट प्लेइंग। यू मे सी सम बैड इंसिडेंट, किसी दिन मूड खराब है, आपका कुछ याद आ गया और फिर आप उसी को लेकर बैठे हैं। नीज में सर डाल के बैठ गए, अभी सब याद आते जा रहा है दुख का, और फिर आंखों से पानी आ रहा है, कुछ कुछ हो रहा है। इसी तरह से पॉजिटिव वाला भी होता है। किसी दिन किसी ने कुछ अच्छा कह दिया, कुछ कॉम्प्लीमेंट मिला, प्राइज मिला, आपको कुछ अच्छा याद आ गया, एंड थिंग्स कीप हैपनिंग लाइक दिस। बट हमें कॉन्शियसली हम इसको कुछ ज्यादा करते नहीं है, है ना। जो लोग इस पे कॉन्शियसली काम करते हैं, दे आर एक्चुअली एम्प्लॉइंग लॉज ऑफ थॉट इन देयर फेवर।
तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये विजुअलाइजेशन पावर भी उसी से रिलेटेड ही है ना। विजुअलाइजेशन के बहुत सारे डायमेंशन है। एक तो ये मूवीज वाला डायमेंशन है जिसमें आप एक्चुअली मूवीज चूज करिए कि मुझे कौन सा देखना है मूवी। सी माइकल फेल्प्स, आई थिंक हाईएस्ट गोल्ड मेडल सो फार, नॉट ओनली इन स्विमिंग, across all athletes. I think he has the highest one who has secured highest medals, gold medals. He used to play this mental movie every night because of his beautiful coach. He trained him big time. तो उसमें वो मेंटल मूवी देखता था. He was down perfect to the microsecond. तो वो डेली वो वीडियो टेप देख के वो सोता था many years. तो ये विजुअलाइजेशन पावर था. So when he ran in Olympics, there was no chance of defeating him because he had done that practice literally thousands and millions of times in his mind. He was so down to the basically perfect to the second कि ये सेकंड पे ये होगा, ये सेकंड पे ये होगा, इतना परफेक्शन था उसका. इस तरह से होता है, इतना पावरफुल है विजुअलाइजेशन. ठीक है. So when you don't consciously decide your pictures to play, the mind will automatically look from old files and play something. So don't let that happen because it's a power going for a waste. ये ऐसा है कि गैस पे कुछ भी बन रहा है, आप बैठे हैं हॉल में अखबार पढ़ रहे हैं और गैस पे कुछ कुछ जल रहा है, कुछ कुछ बन रहा है, गैस वेस्ट हो रही है, पानी वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रहा है, खाना वेस्ट हो रहा है, आपको कुछ ध्यान ही नहीं. इतना पावरफुल है. तो आपका ऐसे ही माइंड का जो गैस है ना, एनर्जी है, विजुअलाइजेशन की हीट है, वो वेस्ट हो रही है लिटरली. वी आर समथिंग इज गेटिंग कुक्ड. कभी फिश बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, समथिंग इज फिशी, बट वी डोंट पे अटेंशन टू इट. So just imagine if you start paying attention to that, then you can literally cook the meals that you desire in life. Okay. So the fourth point clarifies it. Create new pictures. Your images will become only sharper with time. Do it daily. So I gave an example of Michael Phelps, and there are other good, fantastic, successful people also who have employed this power of affirmation and visualization to become successful. क्या करना है? वेरी सिंपल. जो भी तुम्हें बनना है, जो भी हमें करना है, सपोज यू वांट टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर फॉर एग्जांपल. जैसे फियर आता है, मैंने बताया बहुत सारे लोगों को पब्लिक स्पीकिंग का फियर आता है. आपको बनना है तो आप क्या करते हैं ना, आप विजुअलाइज करते हैं कि आपने एक पिक्चर बनाई है एक डायरेक्टर की तरह. छोटी सी पिक्चर हो सकती है, कोई रिकॉर्ड वार्नर ब्रो स्टूडियो नहीं बनाना है. जस्ट सिंपल सिंपल मूवी 5 to 6 सीन्स कि आप एक अपटाइट पोस्चर के साथ, कॉन्फिडेंटली स्माइल के साथ, यू आर रिहर्स्ड विद योर कंटेंट, यू आर गोइंग ऑन द प्लेटफॉर्म, होल्डिंग द माइक, thousands of people are cheering for you, and then you deliver your speech fantastic, in a fantastic way, and then you get a standing ovation or something. People are very very happy, they are coming to you for your feedback, summary and autograph and all that, and then you are coming down the stage. इस तरह का, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. तो इस तरह से आप खुद अपना एक मूवी बना सकते हैं. जो भी आपको बनना है लाइफ में, या जो भी चीज में सक्सेसफुल होना है ना, उसके लिए अपनी एक मूवी बनाओ और उसको डेली प्ले करो. इतना ही सिंपल है बस. ये मूवी बनाने में कितना टाइम लगेगा? 1-2 मिनट. आपने सोच लिया. आर्टिस्ट तो ड्रॉ भी कर सकते हैं. या लिटरली जिनका इमेजिनेशन अच्छा है वो इमेजिनेशन पे काम कर सकते हैं. नहीं भी अच्छा है तो जितना समझ रहा है उतना कर सकते हैं. ठीक है. और अफर्मेशन ही इतना, ऑडियो ही इतना पावरफुल है वर्ड वाइज, तो सोचो विजुअलाइजेशन से क्या होता होगा. Then you are actually cooking a good meal for your future. You're using the mental energy of your mind and do it daily. तो ये जब आप ऐसा कोई छोटा सा 2 मिनट का एक्सरसाइज भी हम डेली करते हैं ना, तो फिर आप खुद उसका रिजल्ट देखेंगे. दिस इज ऑल्सो लाइक द लॉ ऑफ सीक्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल स्टार्ट वर्किंग इन योर फेवर.